Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are well, fit, healthy. Okay, student. See, today date is 3/9/2020. Chapter number 15, the coastal plains and islands. Okay, so let's do the recapitulation what we have done in our previous video, and after that I will continue with the topic. Okay, so student, this, what is this? This is a peninsular region of India. Okay, so in our 14th chapter we study Deccan Plateau. Now here the coastal plains. So one recapitulation I will do. Where are the coastal plains? See student, this is the uh, this is given. See, this is a triangular shape. Okay, इसकी shape क्या है? Peninsula Plateau की. This is a Peninsula Plateau of India and it is triangular in shape. And it is triangular in shape. Now student, see, this is a plateau part, and where is here western coastal plains. See this, what is this? These are West Ghat. These are Western Ghat. These are the hills, continuous hill range on the west side, and this is a continuous hill range on the mountain range on the eastern Ghat side. So where is here western coastal plains? Western coastal plains lies between western coastal plains. बेटा ये जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, और इधर कौन सी सी है? अरेबियन सी है. ठीक है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो इट इज सराउंडेड बाई, ये जो लैंड है, लैंड ऑफ दिस एरिया इज सराउंडेड बाई ऑन 3 साइड्स with water bodies. East, Bay of Bengal. From the east, Bay of Bengal. In the south, Indian Ocean. And in the west, it is Arabian Sea. So see, these are Western Ghats. So, and this is the continuous range of the mountains, and this is a Arabian Sea. So between this is your western coastal plains. ठीक है, और coastal lines क्या होती हैं? The sea water which in touch of a land. सी वाटर जो लैंड के टच में आता है उसी को कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं. ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपका कहाँ है बेटा? दिस कंप्लीट माउंटेन रेंज इन द, this is your western ghats and this is Arabian Sea. So between western ghats and Arabian Sea you have the western coastal plains. ठीक है, you have western coastal plains. Now see east side, what are these? These is again complete range, continuous range of the mountains on eastern ghats. So, and what is this? This is Bay of Bengal. Okay, so here eastern coastal plains, ये किसके बीच में है बेटा? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो आपकी स्ट्रिप्स आ रही है प्लेन की, यही आपके क्या है? दीज आर योर ईस्टर्न, दीज आर योर ईस्टर्न कोस्टल these are your eastern coastal plains. Now see student, one by one. First of all, I give you the explanation of western coastal plains, and after that I give you the explanation of a eastern coastal plains. Is it clear? So from here, west, it means from, ये कहां से कहां तक है जो इंडिया की कोस्ट लाइन है? ये कहां से कहां तक है बेटा? इट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात एंड अप टू वेस्ट बंगाल. ठीक है, it start from the Gujarat and
from Gujarat. Here it come in this manner. Here is Kanyakumari, and so from Gujarat कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच है, इंडियन कोस्टल लाइंस कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच है, फ्रॉम गुजरात टू West Bengal, from Gujarat to West Bengal. If you want to note down in your copy, you can write down in your copy also. Okay, now see student, first of all I give you the explanation of the western coastal plains, and after that I give you the explanation of the eastern coastal plains. Now all of you open your book, open your book. See, so student, firstly understand what are western coastal plains. Okay, the western coastal plains. The western coastal plains, now it is very clear to all of you, the western coastal plains lie between Arabian Sea and Western Ghats. Arabian Sea और Western Ghats के जो बीच में plains हैं, that is their western coastal plain. So you are on page number 92. You can underline this. One word question can be asked from number question can be asked. It can be asked in the question, where are the western coastal plains? So answer is western coastal plains lie between the Arabian Sea and the Western Ghats. Okay, now after that it is a long narrow stretch with many small gulfs and bays which form natural harbors. Mumbai in Maharashtra, Vasco in Goa, and Kochi in Kerala are the famous natural harbors of this region. And when we study western coastal plains, it is divided into three parts. Okay student, when we study western coastal plains, then it is divided into three parts. First is second one is, first is Gujarat coast, second is the Konkan coast, and third is the Malabar coast. Okay, so student, so western coastal plains, it is divided into three parts, that is a Gujarat coast, Konkan coast, and Malabar coast. So let first start with the Gujarat coast. Okay, and if you want to note down, you can write in your rough copy also for your good understanding. Gujarat coast, it extends from Gulf of it extends from Gulf of Kutch
to Gulf of, it extends from Gulf of Kutch to Gulf of Khambat. ओके, गुजरात कोस्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये कहां से कहां फैली हुई है? इट इज एक्सटेंड, इट स्ट्रेचेस भी लिख सकते हो, या इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ टू गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है, सो देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है दे आर नैरो, ठीक है, लेकिन जो ये गुजरात वाला पोर्शन है इसका, द गुजरात पार्ट, कंसीडर द गुजरात पार्ट ऑफ दिस कोस्टल प्लेन, इट इज वेरी ब्रॉड। ठीक है, ये काफी बड़ा है, सबसे बड़ा पार्ट जो है ये गुजरात कोस्ट है। वैसे तो वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो इफ वी कंपेयर विद द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है, ज्यादा वाइड है, ज्यादा चौड़े हैं। ठीक है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है, ये नैरो है। लेकिन यहाँ गुजरात पे जो गुजरात कोस्ट है, हियर इट इज वेरी वाइडर, वेरी ब्रॉड है, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा बड़े हैं गुजरात पे। इज इट क्लियर? और उसके बाद फिर ये क्या है, नैरो है। उसके बाद ये क्या है बेटा, नैरो है। लेकिन गुजरात पे अगर आपसे कोई पूछता है कि विच इज द प्लेस वेयर द कोस्टल प्लेन्स आर वेरी वाइड, तो दैट इज गुजरात कोस्ट पे है। इसपे है, गुजरात कोस्ट पे है। इट एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ टू गल्फ ऑफ खंबत। ओके, अब देखो व्हाट इज द गल्फ। गल्फ क्या है, देखो a gulf is an inlet of the sea that has a large area of a water partially surrounded by a land। ठीक है, अब ये देखो ये वाटर, इट इज अ लार्ज एरिया ओके ऑफ ए सी। सी का जो वाटर है ये किससे सराउंडेड है, लैंड से सराउंडेड है, इसी को हम लोग गल्फ बोलते हैं। ठीक है, ये वाटर किसका है, ये वाटर सी का ही है, लेकिन लार्ज एरिया ऑफ ए वाटर विच इज सराउंडेड बाय ए लैंड, मतलब काफी दूर तक वो किससे सराउंड है, घिरा हुआ है, किससे, लैंड से, तो इसी को हम लोग बोले गल्फ, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ है एंड गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है, सो ए गल्फ इज एन इनलेट ऑफ द सी दैट इज ए लार्ज एरिया ऑफ ए वाटर, लार्ज एरिया ऑफ ए वाटर पार्शली किससे वो सराउंडेड है, लैंड से, दैट इज सराउंडेड बाय ए लैंड। ओके, ये हो गया आपका गुजरात कोस्ट। ठीक है, अब इफ समवन आस्क्स यू, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में है वेस्टर्न घाट्स, दैट इज गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। सो गुजरात कोस्ट में क्या पार्ट आए बेटा आपके, इट एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ टू गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है, सो गल्फ का मीनिंग आप लोग को क्लियर हो गया। देखो ये वाटर ही होता है, ये सी का ही वाटर होता है, लेकिन सी का बहुत ज्यादा पानी जो होता है लैंड से सराउंड है। ठीक है, घिरा हुआ लैंड से, वैसे जैसे वाटर है और इस तरह लैंड उसको क्या सराउंड कर रहा है उस वाटर को, तो इसी को गल्फ बोलते हैं। इज इट क्लियर? एक होता है लैंड को वाटर टच कर रहा है, यहाँ पे क्या है, बहुत वाटर कहाँ का है, सी का ही वाटर है, सी के वाटर को लैंड क्या काफी लैंड क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो अर्लियर इन द पैराग्राफ इट इज गिवन दैट मेनी गल्फ एंड वेज आर देयर। ठीक है, इसलिए जो वेस्टर्न आपके कोस्टल प्लेन्स हैं यहाँ पे काफी हार्बर्स हैं, पोर्ट्स काफी है यहाँ पे आपके वेस्टर्न पार्ट्स में। हार्बर मीन्स कल आपको एक्सप्लेन किया था, अ प्लेस वेयर द वाटर इज वेरी डीप सो दैट द शिप्स कैन डक। ठीक है, शिप्स में सामान लोड भी किया जा सकता है और सामान अनलोड भी किया जा सकता है। कल मैंने आप लोग को इसमें डीप इनफ फॉर शिप टू डॉक नियर द लैंड। ठीक है, सो दैट इज नोन एज, आप लोग को कल भी बताया था व्हाट इज द मीनिंग द हार्बर्स। तो इस पोर्शन में जो हार्बर्स हैं, ठीक है, सो गुजरात कोस्ट अब आपको बता दी। अब नेक्स्ट आप लोग देखो कौन कौन कोस्ट क्या है।
तो आपके जो कौन कौन कोस्ट है, ये गल्फ ऑफ खम्बस से लेके गोवा तक है, और इसका सबसे मेन क्या है, महाराष्ट्र वाला पार्ट है। इसका सबसे मेन पार्ट जो है बेटा वो महाराष्ट्र वाला पार्ट है। ऑयल रिफाइनरीज भी है यहाँ पे, ठीक है, ऑयल निकाला जा रहा है, नेचुरल गैस है जो ऑयल के संग निकलती है, ठीक है। सो दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपका मालाबार कोस्ट है वो गोवा से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। उसमें सबसे मेन पोर्ट आपका कौन आ रहा है, जो कोची बताया था, दैट इज वेयर इट इज इन केरला। वो कहा था, केरला में था, ठीक है। तो दिस अबाउट जो हमने वेस्टर्न घाट पढ़ा, वेस्टर्न घाट में इतना ही है। वेस्टर्न घाट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। तो गुजरात कोस्ट कहां से कहां तक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ टू गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है। उसके बाद गल्फ ऑफ खंबत से लेके गोवा तक जो आपका क्या आ जा रहा है, कौन कौन कोस्ट आ रही है। फिर गोवा से लेके कन्याकुमारी तक आपका कौन सा आ रहा है, मालाबार कोस्ट आ रही है। कौन सी कोस्ट आ रही है आपकी बेटा, मालाबार कोस्ट आ रही है, ठीक है। और अनदर थिंग्स we discuss about this वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज दैट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो मालाबार कोस्ट है, जो ये वाला जो एरिया है, यहाँ रेनफॉल बहुत होती है। इज इट क्लियर, हियर देयर इज अ हैवी रेनफॉल, जहाँ रेनफॉल बहुत अच्छी होती है। अनदर थिंग इज दैट एज कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये क्या है, नैरो है। जो साउथ के डायरेक्शन में जब साउथ में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा नैरो हो गए हैं, ठीक है, इनकी ज्यादा चौड़ाई नहीं है, ठीक है, ये नैरो हो गए हैं। इज इट क्लियर, तो ये पार्ट हो गया आप लोग का, ये इतना आप याद रखोगे इसमें, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और इसमें बुक से का, साउथ ऑफ द गुजरात, अब गुजरात के जो साउथ में है दैट इज देयर कोंकण कोस्ट, ठीक है, एक्सटेंड्स अप टू गोवा। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैंने आई हैव नॉट रिटन ऑन द बोर्ड बट बाई आई हैव एक्सप्लेन यू कि गुजरात में जो अब पहला क्या था, इट एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ टू गल्फ ऑफ खंबत। अब गल्फ ऑफ खंबत से लेके गोवा तक आपकी कौन सी कोस्ट आ रही है, दैट इज द कोंकण कोस्ट आ रही है, ठीक है। अब नाउ कोस्ट लाइन हेयर इज नैरो। अब यहाँ जो आपकी कोंकण कोस्ट है, यहाँ जो कोस्ट लाइन है दैट इज वेरी नैरो एंड दिस इज वेरी रॉकी and uneven. It was lighthouses along the coast warn ships about the rocks that lie just beneath the surface of the sea. So another thing, ये लिख देते हैं बोर्ड पे आपके, so that you are able to understand। ये जो आपकी कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट जो है बेटा, it extends from Gulf of खंबत टू गोवा, ठीक है। कोंकण कोस्ट इट एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबत टू गोवा। अब देखो इस ये जो दिस इज इन दिस पार्ट द कोस्टल प्लेन, इट इज वेरी नैरो एंड ये बहुत रॉकी है, यहाँ बहुत सी चट्टाने हैं, ठीक है। दैट इज द रीजन इन दिस रीजन यू विल फाइंड लाइट हाउसेस। लाइट हाउसेस ऑलरेडी मैंने कुछ कीवर्ड्स आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बताए थे, सो दैट व्हेन दीज कीवर्ड कम एट द टाइम ऑफ व्हेन वी आर when I am explaining you with the help of the chapter, when these keywords will come then you are able to understand, okay। मैंने आप लोग को बताया था light houses, these are very big buildings and it has a lot of light, and with this light what we do, we warn the ship that this area is a very rocky, so that the captain of the ship understand that if by seeing the lighthouse it means there are lot of rocks in that part of the sea, okay। क्या है कि चट्टाने बहुत हैं इस पार्ट में, ठीक है, और ये चट्टाने क्या पानी के नीचे भी डूबी हुई हैं। वर्ड है विनिथ द सरफेस ऑफ द सी। लाइट हाउस इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि चट्टाने बहुत हैं इस रूट में, और चट्टाने क्या है, डूबी हुई हैं वाटर में, और वाटर में कोई चीज अंदर डूबी हुई है
तो आपको नहीं ना पता चलेगा, अगर आप वहां से शिप ले जाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। इज इट क्लियर? सो दैट इज द रीजन लाइट हाउसेस आर इन दिस रीजन। लाइट हाउसेस क्या है, ये वार्न कर देते हैं, दे वार्न टू द शिप दैट दिस रूट इज फुल ऑफ बिग बिग रॉक्स। और रॉक्स क्या है, पानी में डूबे हुए भी हैं, तो वो जनरली दिखाई तो देंगे नहीं, लेकिन ड्यू टू दिस लाइट हाउसेस द कैप्टन ऑफ द शिप विल अंडरस्टैंड दैट दिस वे दिस रूट of the sea is not safe for the ship. This route of the ship is this route is not safe for the ship. तो यहाँ लाइट हाउसेस भी हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कोंकण रीजन इज दैट दिस कोस्ट इज रिच इन पेट्रोलियम एंड मेनी ऑयल वेल्स आर फाउंड हियर। ठीक है, इसमें जो आपका महाराष्ट्र वाला मुंबई वाला जो एरिया है, इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द कोंकण कोस्ट इज दैट इट इज वेरी रिच इन पेट्रोलियम। बहुत से ऑयल वेल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इट इज रिच इन पेट्रोलियम एंड देयर आर मेनी ऑयल वेल्स आर देयर इन दिस रीजन। ठीक है, जो आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है। आ गया समझ में? अब स्टूडेंट चलते हैं हम लोग किस पे, मालवार कोस्ट पे। ठीक है, अब नाउ लास्ट वन, कौन कौन कोस्ट बता दी, मालवार कोस्ट बता दी। अब नाउ मालवार कोस्ट, सो आई राइट इट हियर सो दैट इट इज विजिबल। मालवार कोस्ट की बात करें स्टूडेंट, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गोवा, इज इट क्लियर? या मालवार कोस्ट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी, गोवा टू कन्याकुमारी। ठीक है, जैसे मैंने गुजरात का बताया था, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ टू गल्फ ऑफ खंबर, and Konkan coast it extends from Gulf of Khambar to Goa, and yeah, Malabar coast, this is the third part of this, it extends from Goa to Kanyakumari. So here Kochi is the main seaport and it is in where, Kerala. ठीक है, now what is the specialty here, what in so in Malabar coast you will see lot of lagoons. सो अब ये सब किस में है, साउथ में। ठीक है, ये सब साउथ में आ रहे हैं आपके। ठीक है, साउथ ऑफ द गुजरात, क्योंकि सबसे ऊपर मैंने क्या लेके स्टार्ट किया था पढ़ाना, गुजरात। सो स्टूडेंट, द मालवार कोस्ट लाइज टू द साउथ, द अनइवन एजेस ऑफ द कोस्ट लाइन हैव आल्सो फॉर्म ए नंबर ऑफ लेग्यून्स और बैक वाटर। सो व्हाट आर these lagoons which are found in Malabar coast? These are the lakes of the salt. ठीक है, ये क्या है, लेक्स हैं जो जिनका वाटर क्या है, साल्टी है। इज इट क्लियर? सो और ये क्या होती हैं, सी से क्या हो जाती हैं, ये सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, ये सी से सेपरेट होके अलग से एक लेक बन जाती है, झील सी बन जाती है। ठीक है, सो दीज आर मालाबार कोस्ट इज फेमस फॉर द लेगून्स, और लेगून्स को ही बैक वाटर कहते हैं। सो व्हाट आर लेगून्स? लेगून्स आर लेक्स ऑफ सॉल्ट वाटर दैट गेट सेपरेटेड बाय द सी। ठीक है, दीज आर द लेक्स ऑफ ए साल्ट वाटर, खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, लेक्स ऑफ सॉल्ट वाटर मीन्स झील बोलते हैं लेक को, खारे पानी की झीलें हैं जो कि सी के वाटर से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ठीक है, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय द सी वाटर। और यहाँ पे रेनफॉल काफी अच्छी होती है आपके मालाबार कोस्ट में। रेनफॉल यहाँ अच्छी खासी, यहाँ बारिश होती है, रेनफॉल बहुत होती है इस कोस्ट में। और सो तुम लोग को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बार पूरे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की क्या कर लेते हैं बेटा, रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, जिससे जो पॉइंट्स बाई चांस छूट भी गया होगा तो भी वो रिवीजन के समय क्लियर हो जाएगा रिकैप्चुलेशन में। ओके, सो स्टूडेंट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स
lie between the Arabian Sea and the Western Ghats. अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के जो बीच में है उसी को हमने क्या बोला, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है आपके स्टूडेंट, इसमें 3 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट आपके जो बताया है, महाराष्ट्र में मुंबई में बताया है, इज इट क्लियर? केरला में कोची और वास्को कहाँ है, गोवा में। ठीक है, द 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो इसने बताए हैं, दैट इज मुंबई इन महाराष्ट्र, वास्को इन गोवा एंड कोची इन केरला। These are the famous natural harbors of these region. Natural harbors means आपको समझ में आ गया होगा, the place which is deep enough for the ship to, the place which is a place along the coastline which is deep enough for ships to dock near the land. ठीक है, और जहां ये हार्बर्स होते हैं, जहां शिप खड़े होते हैं कोस्ट लाइन में, उसी के आसपास का जो एरिया होता है, सिटी लाइक एरिया बन जाता है, जिसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं। जैसे रिवर गंगा है, सो इफ यू सी एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा, यू सी अ ब्यूटीफुल सिटी, दैट इज अ वाराणसी। इन द सेम मैनर, वेयर आर द सी पोर्ट्स अराउंड दिस हार्बर, अ बिग सिटी डेवलप। ठीक है, जहां ये हार्बर होते हैं, शिप जहां पे डक होते हैं, तो वहां एक बड़ी सी सिटी बन जाती है, जिसे पोर्ट बोलते हैं। सी पोर्ट कितने हैं, एक मुंबई का किया, ये नेचुरल हार्बर्स हैं, मुंबई का है, गोवा में वास्को है, और केरला में कोची है। इज इट क्लियर? सो आ गया, अब आ जाओ। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये हो गया। उसके बाद वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या, बहुत ही नैरो है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या, नैरो है। ठीक है, देयर दीज प्लेन्स आर नॉट वाइड, ज्यादा चौड़े नहीं है, ये क्या है, नैरो है। ठीक है, लेकिन व्हेन यू कंसीडर द गुजरात कोस्ट, गुजरात कोस्ट सबसे ज्यादा ब्रॉडेस्ट है, सबसे ज्यादा चौड़ी कोस्ट हुई है, तो वो है बेटा आपकी गुजरात कोस्ट है। सबसे ज्यादा जो बड़ी कोस्ट है बेटा, वो आपकी गुजरात कोस्ट है। इज इट क्लियर? सबसे ज्यादा वाइडर यही पार्ट है। वेस्टर्न घाट में अगर हम लोग कंसीडर करें, बाकी पूरी तो नैरो स्ट्रिप्स है, लेकिन जो गुजरात का पार्ट है, जो गुजरात कोस्ट है, दैट इज वेरी वाइडर, और यू कैन से इट इज वेरी ब्रॉडेस्ट, बड़ी है। ठीक है, और आफ्टर दैट वी डिस्कस गुजरात कोस्ट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ टू गल्फ ऑफ खंबर। सो गल्फ, व्हाट इज द गल्फ, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए सी वाटर विच इज सराउंडेड बाय द लैंड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं। व्हाट वी से इट एज ए गल्फ। ठीक है, अगर सी वाटर, बहुत ज्यादा सी वाटर का जो पोर्शन है, जो किसी लैंड से सराउंड हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं। इज इट क्लियर? और इसकी जो माउथ होती है वो नैरो होती है, और वे में क्या होता है, माउथ क्या होती है, बड़ी होती है, वाइडर होती है। ठीक है, तो सेम ही है। अब उसके बाद फिर व्हाट वी हैव स्टडी द कोंकण कोस्ट। सो इट एक्सटेंड, गुजरात के साउथ में है, सेकंड जो अब हम पढ़ रहे हैं, दैट इज अ कोंकण कोस्ट, एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबत टू गोवा। गल्फ ऑफ खंबत टू गोवा, दैट इज द कोंकण कोस्ट है। और दिस कोस्ट इज वेरी रॉकी ऑल्सो, देयर आर लाइट हाउसेज इन दिस रूट, and these lighthouses warn the ship। ठीक है, ये लाइट हाउसेज शिप को वार्न करते हैं, बिकॉज जो सी के नीचे बहुत से क्या है, ये रॉकी है। ठीक है, बहुत चट्टाने हैं यहाँ। ठीक है, रॉक मीन्स बहुत सी चट्टाने हैं। सो डैट इट दीज लाइट हाउसेज वार्न द शिप दैट दिस route is not safe for the ship. But what is the most important point about the Konkan coast is that it is rich in petroleum। ठीक है, बहुत से ऑयल वेल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके महाराष्ट्र वाले पार्ट में। ठीक है, आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया मालाबार कोस्ट, इट एक्सटेंड फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी। ठीक है, और इस मालाबार कोस्ट में आपको क्या है, रेनफॉल, हेवी रेनफॉल है। Another thing is that here you found the lagoons, that are the lake of salt water that we discuss in a Malabar plateau। ठीक है, and
और ये आपका पूरा हो गया बेटा। ये वेस्टर्न घाट्स आपको पूरे सॉरी वेस्टर्न घाट कह रहे हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपके कंप्लीट हो गए। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन यू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। थैंक यू स्टूडेंट।